کریں گے وہ سیکنڈ چرچ ہے اور وہ ہے سمرنا. ہم مل کر پڑھیں گے سمرنا. اچھا, جب یوحنا عارف جو ہے وہ اس مکاشفہ کو لکھ رہے ہیں تو اس کا جو بخوبی مطلب ہے, اس کا مطلب آسمان پر ہر کلیسیا کا ایک فرشتہ نمائندگی کرتا ہے آسمان پر. اور بخوبی طور پر ہمارا یہ سمجھنا ہے, ہر ایک شخص اس بات کو سمجھتا ہے میرے ساتھ میرے فرشتے ہیں, اور یہ ایک روحانی بات ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے فرشتے ہیں. تو آسمان پر جب یوحنا عارف اس مکاشفہ کو لکھ رہا ہے, ان کلیسیاؤں کو یہ پیغام دے رہا ہے, تو آسمان پر ہر کلیسیا کا فرشتہ جو ہے وہ اس کی نمائندگی کر رہا ہے. نمائندہ, ہر کلیسیا کا ایک نمائندہ وہ فرشتے کی صورت پر آسمان پر موجود ہے. یہ بائبل کی بات ہے. تو آج ہم سیکنڈ چرچ پر, دوسرے چرچ پر جو سمرنا کلیسیا ہے, ہم اس پر غور کریں گے. خدا کے بندہ یوحنا عارف جو ہے اس کو پیغام بھیجتے ہیں, اور یوحنا عارف کا درد, اس نے بوجھ رکھا ہے چرچ کے بارے میں, کلیسیا کے بارے میں. اور یہ کوئی یہاں پر کوئی شکی نہیں بیٹھا ہوا. پتمس کا جو جزیرہ ہے یہاں پر یہ کوئی شوق سے نہیں بیٹھا ہوا, بلکہ یہ جلاوطن ہے. اس دور کے حاکم نے یوحنا عارف کو منادی کے باعث اس ملک سے جلاوطن کر دیا ہے, اور اب یہ اس جزیرہ پر بیٹھا ہوا, اس کے پاس ایک پینسل اور کاپی ہے, اور یہ وہاں پر مکاشفات لکھ رہا ہے. اور دوسرے جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں, وہ بھی پریشانی میں ہیں. چرچ بھی پریشانی کے اندر ہے, لیکن کچھ چرچ منادی بھی کر رہا ہے. کوئی چرچ کے لوگ جو ہے, کلیسیا کے لوگ رسول منادی کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ مصیبت میں ہے تو یہ خدا کا بندہ یوحنا عارف بھی مصیبت کے اندر ہے. یہ پتمس کے جزیرہ کے اندر ہے, اور وہاں سے پھر وہ روح میں آ گیا. اب دوسرے رسول تو کلیسیاؤں میں کام کر رہے ہیں, لیکن یہ روح میں آ گیا, اور اس نے پھر کلیسیاؤں کو پیغام لکھا. ہم پڑھیں گے, یہاں پر لکھا ہے, ہم 8ویں آیت, مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے, اور اس کا دوسرا باب ہے, اس کی آیت کریمہ جو ہے وہ 8ویں اور پھر 11ویں آیت تک آج شام اپنی رہنمائی کے لیے ہم سیکھیں گے. کلام خداوند کے اندر لکھا ہے, مرقوم ہے, اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے, اور جو مر گیا تھا وہ زندہ ہوا ہے, وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں, مگر تو دولت مند ہے, اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں ہے, ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو, ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو, اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہم مل کر اس آیت کو پڑھیں گے. جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. 11ویں آیت میں لکھا ہے, جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آمین. اب اگر ہم اس کی ہسٹری پر غور کریں, اس چرچ کی ہسٹری پر غور کریں, تو اس دور میں ایک تبریاس بادشاہ صاحب, اس دور, اس عیسوی کے اندر جب یہ لیٹر لکھا گیا, جب یہ پیغام چرچ کو لکھا گیا, اس دور کے اندر 23ویں عیسوی کے اندر, 23ویں اور 24ویں عیسوی کے اندر جو ہے وہ ایک تبریاس بادشاہ تھا, اور وہ بادشاہ کا مندر اس ایریے کے اندر بنایا گیا, اور کہا گیا کہ اس کو تمام سجدہ کریں, اس کو تمام. اور یہ بات ہمیں وہاں پر ملتی ہے جب نبوکدنضر بادشاہ نے ایک مورت بنائی, اور اس نے کہا کہ تمام اس تمام جو ٹاؤن کے لوگ ہیں, وہ اس علاقہ کے لوگ تمام اس کو کیا کریں, سجدہ کریں. لیکن وہاں پر شدرک اور میثک اور عبداللجو نے اس بات کا انکار کیا کہ ہم اس خدا کے زندہ خدا کے پرستار ہیں, ہم اس مورتی کو سجدہ نہ کریں گے, کہ ہم ایسے خدا کے ماننے والے ہیں جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہیں. یسوع مسیح یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں ہی اول اور میں اس کی اور حصے اگر بتاؤں تو یہ پچھلے چرچ جو افسس کی کلیسیا نے سیکھی ہے, یہ جو سمرنا کی کلیسیا ہے, یہ آپس میں ان کا جو ڈفرنس ہے, جو فاصلہ ہے, وہ تقریباً 74 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ چرچ تمام جو ہے وہ آسیا کے اندر ہے. آسیا جو آج کے دور میں آج بھی موجود ہے یہ علاقہ, اور یہ ترکی کے اندر ازمیر کے نام سے ہے. اب یہ صوبہ جو ہے وہ ازمیر کے نام سے موجود ہے. یہ دور کی جس کی میں آج بات کر رہا ہوں, سمرنا کے چرچ کی, یہ چرچ آج بھی یہ علاقہ موجود ہے, اور وہ علاقہ ازمیر کے نام سے ہے جو یہاں پر جس کا واقعہ موجود ہے.
अब हम बात करें यानी उस दौर के रोमी हुकूमत ने, अब जितने जुल्म सितम जो है वो रोमियों ने, यहूदियों ने मसीह पर ढाए हैं, हिस्ट्री बताती है कि ज्यादा किसी और कौमों ने नहीं, ना मुसलमानों ने ना किसी और कौम ने, बल्कि जो ज्यादा मसीह पर जुल्म और सितम किए गए वो रोमियों की जानब से और यहूदियों की जानब से जब वो जुल्म और सितम किए गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां पर ये तसल्ली देते हुए आप तमाम से, मुझसे और आपसे और चर्च से बात करते हैं कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं। तुझे चर्च मुसीबतों का सामना करना है, चर्च आजादी का सामना करेगा, लेकिन आखिर में खुदावंद यीशु मसीह इस वादे को मुझे और आपसे करते हैं कि मैं तुझे वो ताज दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं है, मैं तुझे जिंदगी का वो ताज दूंगा। चर्च हमें इस बात को याद रखना है, चर्च के साथ जो यीशु मसीह का वादा है, हमें आजादी को बर्दाश्त करना है, हमें दुखों, मुसीबतों को, परेशानियों को, तमाम इज़ाओं को हमें बर्दाश्त करना है, और ये चर्च के लिए। और आखिर में खुदावंद यीशु मसीह इसी अगर हम इसी बात का मुताला करते हैं, आखिर में 11वीं आयत में, उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारी आजमाइश और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे और मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम आखिर में जाकर इस ताज के बारे में जरूर सीखेंगे कि ताज कौन सा ताज है, ये किस बारे में ताज के बारे में बात की गई है। और मुकाशफा उसके दूसरे बाब उसकी 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं पहले चर्च को कि मैं ही अव्वल और मैं ही अव्वल हूं और मैं ही। अगर हम इसको हरूफे तहजी के एतबार से सीखें, अव्वल यानी अलिफ और आखिर ये, मैं ही अव्वल और मैं ही, यानी जो जब सब कुछ ना था तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे, उसकी रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और जब सब कुछ नहीं होगा तब भी वही मौजूद होगा। मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकाले फिलिपियोस का पहला बाब है, उसकी 29वीं आयत करीमा, आयत मुबारका। अगर आप निकाल लें तो पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। जी पढ़ दें, अगर आपने निकाल लिया है फिलिपियों उसका पहला बाब है, उसकी 29वीं आयत। जी पढ़ दें। क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ, चर्च सुन लें, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ है कि ना फिकत उस पर ईमान लाओ, हाँ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। अब देखें चर्च, इस बात को हमें सीखना होगा कि मसीह की खातिर यानी यीशु मसीह के सबब से चर्च यहां पर फजल हुआ है कि ना हम सिर्फ उस पर ईमान लाए बल्कि क्या करें, बल्कि दुख से। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इनाम के तौर पर चर्च को यह बात दे दी है कि ना सिर्फ हम उसके वसीले उस पर ईमान लेकर आए, बल्कि चर्च हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब चर्च को मुसीबत उठाना पड़ेगी, चर्च को जिल्लत उठाना पड़ेगी। और उस दौर के अंदर अब यहां पर अगर हम इसको सीखें तो यहां पर लिखा मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, मैं तेरी, निकाल लें प्लीज वही चर्च हम जिसकी बाबत सीख रहे हैं, सुमरना के चर्च के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर देखें 9वीं आयत में लिखा मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को। अब उस दौर के हाकिम ने उस सुमरना के चर्च की तमाम जो प्रॉपर्टीज थी, तमाम घर बार थे, वो तमाम छीन लिए गए। रास्तबाजी के सबब से उस चर्च की तमाम प्रॉपर्टीज को अपने कब्जा में कर लिया गया, उनके तमाम घर बाहर पर, उनके तमाम प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया गया। और उस दौर के हाकिम ने उनके घर जला दिए, उनके घर जला दिए। और यहां पर लिखा मैं तेरी गरीबी को जानता हूं, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं, लेकिन तू दौलतमंद है। तू क्या है? दौलतमंद है। बड़ी अजीब सी बात है कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहां पर खुदा फरमाता है तू दौलतमंद है। इसका मतलब क्या है? तू दौलतमंद है, सब कुछ तेरे पास नहीं है, तू गरीब है। यहां पर पीछे लिखा हुआ है कि मैं तेरी मुसीबत को और तेरी गरीबी को जानता हूं, लेकिन तू दौलतमंद है। तू क्या जी? ये उस आसमान की बातचीत की बात की गई है आखिर के अंदर कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो मैं तुझे जिंदगी का वो ताज दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं है, जो कभी मुरझाने का नहीं है। तू दौलतमंद है। अब देखें, इस बात को समझें, इस दुनिया की तमाम आसाइशें, इस दुनिया की तमाम दौलत, ये सब कुछ फानी है। और खुदा के बंदा पालूस फरमाते हैं ये सब कुछ फानी है, ये तबाह बर्बाद होने वाला है, लेकिन जो हमें आसमान पर मिलने वाला है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा, और वो है हमेशा की जिंदगी। वो है वो ताज जो कभी मुरझाने का नहीं है, वो ताज कभी मुरझाने का नहीं है।
इसलिए यहां पर खुदा के बंदा यूहन्ना आरफ फरमाते हैं कि तू क्या है जी, तू दौलतमंद है। अब इसके तीसरे में लिखा है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात में है, उनके लान तान को भी मैं जानता हूं। हम आगे जाकर इस बात को सीखेंगे। निकालें इब्रानियों उसका 10वां बाब है, उसकी 14वीं आयत है। इब्रानियों उसका 10वां बाब है। प्लीज जल्दी से पढ़ दें ताकि हम इस टॉपिक को, इस चर्च को हम सीख लें। इब्रानियों भाई बिस्म जल्दी से प्लीज, इब्रानियों उसका 10वां बाब निकालना करें प्लीज, उसको पढ़ा करें। इब्रानियों उसका 10वां बाब है, उसकी 14वीं आयत मुबारका। अगर आपने निकाल लिया है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी प्लीज जल्दी से। क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया। एक ही कुर्बानी, देखिए उसने एक ही कुर्बानी के वसीले हमें हमेशा के लिए कामिल कर दिया, एक कुर्बानी के वसीले। अब हमें कोई और कुर्बानी, हमें कोई और ज़बीहा, हमें कोई और खून मारने की कोई जरूरत नहीं है। कलाम फरमाता है हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे और आपके खिलाफ थी, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने से उसको हटा दिया है अपनी अजीम कुर्बानी के वसीला से। चर्च, हमें अब किसी और मुसीबत, हमें किसी और परेशानी का सामना नहीं है। इस दुनिया में रहते बेशक चर्च पाया जाएगा, चर्च को एजाज़ानी बर्दाश्त करना होगी, चर्च पर मुसीबतें, चर्च को जलील किया जाएगा, कलीसिया को जलील किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये कलाम इस बात की बखूबी गवाही देता है। लेकिन यहां पर एक बात और भी है, वो तसल्ली की बात है कि तू दौलतमंद है। तो क्या जी, क्यों दौलतमंद है? क्योंकि आसमान पर हमारे लिए बड़ा अजर है। अगर हम पढ़ें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब, तो वहां पर बात की जा रही है कि अगर लोग मेरे नाम से तुम पर लान तान करें, तुम्हें परेशान करें, फिर क्या करना भला? खुश होना और शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसी अजर की बात है कि तू दौलतमंद है, तू दौलतमंद है। दुनिया में रहते हुए बेशक हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम मुसीबत उठाते हैं, हम परेशान होते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं मुकाशफा के अंदर, वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, वो उनकी आंखों के सब आंसू। अब यहां पर हम यहूदियों की बात देख रहे हैं। अब यहां पर लिखा है कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूं। अब उस दौर के अंदर मैं अब सिखा रहा था इस बात को कि यहूदी जो है वो मसीहियों की बड़ी मुखालफत करते थे। हम इस बात का जायजा इससे लगा सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुए और जब दफन हुए, तो उस दौर के हाकिमों ने, रोमियों ने, यहूदियों ने उस कब्र पर पहरेदार बैठा दिए, मुखालफत की कि भाई आपने इस बात को प्रूव करना है कि खुदावंद यीशु कहीं जी नहीं उठा बल्कि उसके शागिर्द उसको उठाकर ले गए। अब यहां पर लिखा है कि बल्कि शैतान की जमात, अब खुदावंद यीशु ही उसको शैतान की जमात कह रहे हैं। अब यहूदियों ने उस दौर में अपने, बल्कि आज के दौर में भी और उस दौर में भी अपने इबादत खाने बनाए, बड़े बड़े बनाए। लेकिन अगर हम सीखें करंतस की कलीसिया के अंदर, तो वो लोग बड़े बड़े अमीर लोग थे, आज ही बड़े अमीर हैं। अगर हम पिछले हिस्ट्री को मुताला करें तो यहूदी उस दौर में के अंदर भी बहुत अमीर लोग थे, उस दौर के अंदर बड़े मालदार थे। और आप देखते हैं जब खुदावंद यीशु की उसने यूसुफ अरमितिया के रहने वाले ने जब खुदावंद यीशु मसीह की लाश को लिया, इसका मतलब है कि वो बड़े असर रसूख वाला शख्स था, वो लोग बंदा था। अब देखिए गवर्नमेंट के साथ यानी उस दौर के हाकम से लाश को लेना ये बड़ी मुश्किल बात थी। तो हम इस बात का जायजा लगाते हैं कि वो लोग उस दौर के अंदर भी और आज भी बड़े बड़े अमीर तरीन लोग थे, और वो शहर के कामों के लिए, उसकी बहाली के लिए बहुत बड़े बड़े हदिया जात दिया करते थे, बड़ी डोनेशंस करते थे। अब उन्होंने अपने इबादतखाने बनाए थे और वो अपने तरीके के साथ, यानी वो खुदा के बगैर। अब यहां पर खुदा के बंदा यूहन्ना और खुदा फरमाता है कि वो मैं उनको अपनी इबादत का नहीं मानता बल्कि शैतान की, और शैतान की जब बात की जाती है तो वो खुदा का मुखालिफ है। वो क्या जी, प्लीज सीखा करें इस बात को, वो खुदा का मुखालिफ है। वो क्या जी, मुखालिफ मसीह है, एंटी क्राइस्ट। जहां कहीं शैतान की बात होती है तो मुखालिफ मसीह है, वो खुदा का मुखालिफ है। आसमान पर जब जंग हुई तो मिकाएल और जिब्राइल के दरमियान में जब जंग हुई तो वहां पर लिखा है कि फिर उसे आसमान से गिरा दिया गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपना तख्त खुदा से ऊपर ले जाऊंगा, खुदा से बुलंद ले जाऊंगा। जहां कहीं इब्लीस की बात है, जहां कहीं शैतान की बात है, तो वो मुखालिफ मसीह की बात है। और वहां पर लिखा है कि मैं तुझे बहुत सारे दुख सहने होंगे। चर्च के लिए, चर्च हमें बहुत सारे दुख सहने होंगे, हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होगा।
बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हमें जलील करेंगे, रसवा करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन कलाम फरमाता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मैं उसे वो ताज दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं। निकाले रूमी है उसका 8वां बाब अब इसमें भाई, और उसके 17 वर्ष। रोमन्स यानी रूमियो उसका 8वां बाब है और उसकी 17वीं आयत मुबारका प्लीज पढ़ दें। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। हम मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अब देखें पिछली आयात में शायद हम परेशान हुए हो कि भाई सानू की लबना है यसु मसीह नू अपना के। कभी कभी हम सोचते हैं इस बात को, शागिर्द भी उस दौर में ये बात सोच रहे थे कि सानू की लबना भाई, हम जलील भी हो, हम परेशान भी हो, हम रसवा भी हो, हम मुसीबत उठाएं, अपना कारोबार तबाह करें, हमें क्या मिलने वाला है। शागिर्द उस दौर में खुदावंद यीशु मसीह ये सवाल पूछते थे। अब देखें अहद अतीक के अंदर जब मिरास दी गई, जब जो है वो बंटवारा किया गया, तो हारून और उसकी नस्ल के लिए कुछ नहीं था। हारून और उसकी नस्ल के लिए, अब ये कबीला ऐसा था जो लावी था। हारून और जो लावी का कबीला था यानी कहानत करने वाले थे। इस तरह कह रहे हैं पादरी साहब, आप इस दौर में, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूं, आज के दौर में आप ये कह रहे हैं पादरी, एल्डर्स, डिकन्स और वर्शिप टीम। अब उस दौर के अंदर वो जो लावी टीम थी, जो लावी थे, जो कहानत का सारा इंतजाम करते थे, हारून और उसकी नस्ल, उसको कुछ नहीं मिला। तमाम मिरास जो थी वो तमाम बनी इस्राएल में बांट दी गई, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं था। लेकिन खुदा ने बड़ा जबरदस्त वादा किया हारून के साथ। हम मिलकर इस वादे को पढ़ेंगे कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। कितनी बड़ी बात है कि जो कुछ खुदा का है वो हमें मिल जाए। खुदा का सब कुछ है। खुदा की हदूद बहुत बड़ी है। आसमान और जमीन, कलाम में लिखा है आसमान उसका जलाल जाहिर करता है, जमीन उसके हाथ की दस्तकारी। ये सब कुछ, ये जानवर, चरिंद, परिंद, फिजाएं और सब कुछ खुदा का है। उस दौर में जो लावी थे उनको ये मिला, खुदा ने कहा कि जो सब कुछ मेरा है वो सब कुछ है। चर्च आज शाम ये तमाम वादा हमारे लिए भी है। चर्च आज शाम वही वादा खुदा मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है। चर्च को बेशक मुसीबत और दुख सहने होंगे, लेकिन जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा है और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है। आप समझते इस बात को कि अगर कोई फर्जंद है तो वारिस है। आपका बेटा आपकी जायदाद का वारिस है, ये पक्की बात है। एक रास्तबाज शख्स और एक शख्स इस दुनिया के अंदर जो कुछ बनाता है उसका वारिस कौन है? उसका फर्जंद है, उसका बेटा है। तो चर्च इस बात को मैं सीखना होगा कि खुदा चर्च को अपना फर्जंद कह रहा है कि अगर तुम फर्जंद हो तो फिर क्या हो? फिर वारिस भी हो। किसके वारिस? वारिस किसके? बादशाह के वारिस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान की बादशाही के। और फिर लिखा यानी खुदा के वारिस। फिर किसके? खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। मसीह के हम मिरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं। लेकिन एक शर्त है, हम मिरास में वारिस भी हैं, हम यीशु के साथ हम मिरास भी हैं। अब देखें ना, यीशु खुदा का बेटा, फिर हम उसके साथ हम मिरास। लेकिन इसके साथ एक सोर्स है, इसके साथ एक काम करना पड़ेगा, और वो है कि चर्च यीशु के साथ दुख उठाए। चर्च को मुसीबतों का, परेशानियों का, एजाज सानी का सामना करना होगा। चर्च तो आज अपनी नींद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ही है ना। चर्च अपनी आरामगाह को छोड़ने के लिए, चर्च आज अपनी सीक्रेट प्लेस को छोड़ने के लिए, सर्दी बड़ी है, गर्मी बड़ी है, वहां पर मच्छर बहुत है, लेकिन यहां पर चर्च आज शाम सुन लें कि खुदा फरमाता है कि चर्च को दुख सहना होगा और फिर वो मेरे साथ हम मिरास होगा। उस आसमान की बादशाही के लिए मैं बहुत सारा सर्वाइव करना होगा, ऐसे नहीं मिलेगी मैं। जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने उस ताज का वादा किया कि जो कि कभी मुरझाने का नहीं है, उसके लिए हमें चर्च सफर करना होगा, हमें उसके लिए फिर काम करना होगा, वर्क करना होगा, हमें दुआओं में ठहरना होगा। अगर हम चाहते कि चर्च बेदार हो तो फिर हमें खुदा की हजूरी में आना होगा। मैं पिछली मरतबा इस बात को सिखा रहा था कि जब वो औरत थी जिसका शौहर मर गया और वो फिर मर्द खुदा के पास आ गई। मर्द खुदा हालात बड़े खराब ने, अब वक्त आ गया है कि मेरा बेटा है इसको ले जाएं कर्ज ख्वा।
अब जब आपके हालात चर्च, हम जब मुसीबतों का परेशानी का सामना करते हैं, जब हालात बिगड़ चुके हैं, जब कोई दरवाजा में नजर नहीं आ रहा, तो फिर चर्च हमें खुदा की हजूरी में आना होगा। और फिर खुदा फरमाता है कि फिर तुम उस मिराज के हकदार हो जिसका वादा मैंने किया हुआ है। वो ताज दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। चर्च सोर्स ये है, इसके पीछे जो हुक्म ये है कि चर्च को मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना होगा और फिर खुदा की शुक्रगुजारी करनी होगी। खुदा की हमें खुश और शादमान होना है। जब हम चूड़े कहलाएं, जब कभी हमें कोई ऐसे बैड वर्ड्स हमारे लिए इस्तेमाल की जाए, लेकिन ये ज़ारसानी है ना, ये ज़ारसानी का एक तरीकाकार है। जब कौमें हमसे अदावत रखेंगी, वो हमें बहुत सारे चूड़े, भंगी और बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करेंगे। हमें उस वक्त में खुश होना है, शादमान होना है कि ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें जी गिनती उसका 16 बाब उसकी 13वीं आयत। गिनती है उसका 16। बिस्मिल्लाह भाई आप निकाल लें, बेटा आप निकाल लें 20:4। गिनती 20:4 निकाल लें, आप 16:3 निकाल लें जल्दी से। गिनती की किताब है उसका 16 बाब उसकी 3री आयत और उसी बाब 20वें बाब की 4थी आयत मुबारक। गिनती की किताब है, पढ़ दें आप जो निकाल ली अगर आपने तो। 20:4 जी। तुम खुदावंद की जमात को इस दहशत में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरे। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि उस दौर में जो यहूदी थे उन्होंने खुदावंद की जमात को दहशत में तब्दील कर दिया। अगर हम करंथस की कलीसिया को पढ़ें तो वहां पर भाई नजीर ऐसा था कि जो अमीर लोग थे वो अपना खाना बनाकर ले आते चर्च में, अपना खाना बना के लेके आते और वो खुद ही खा जाते। होता ये था कि चर्च में और शायरबानी के लिए, अगापे मील के लिए आते, अच्छा खाना है, कोई ब्रोस्ट लेकर आ रहा है, कोई खीर बना के लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, लेकिन वो गरीबों के साथ मिलकर खाना पसंद नहीं करते थे। यानी यहूदी जो थे उस दौर के, उन्होंने खुदा की जमात को क्या कर दिया? दहशत में तब्दील कर दिया। किसमें जी? दहशत में। उस दौर के लोग जो यहूदी थे वो गरीबों के साथ और चर्च के साथ मिलकर वो तमाम रसूमात को अदा करना पसंद नहीं करते थे। अब खुदा कह रहा है कि तुम लोगों ने मेरी जमात को शैतान की जमात में तब्दील कर दिया, दहशत में तब्दील कर दिया। हमने सीखा है सुमरना में कि वो चर्च क्या जी, वो तुम्हारे नजदीक तो यहूदियों की जमात है, लेकिन मेरे नजदीक क्या जी? शैतान की जमात है। लेकिन फिर भी चर्च हौसला रखकर मजबूत हो जा। वो वादा जो खुदा ने अपने बंदा यशवा के साथ किया, वो आज शाम खुदा मुझसे और आपसे कर रहा है, तू फक्त मजबूत हो जा, खौफ न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरे। चर्च हमें अपनी कमजोरियों में, अपनी लाचारियों में हमें हमेशा खुदा को याद रखना है। जब कभी हम मुश्किलों के अंदर फंस जाएं, जब हम कभी बीमारियों में, लाचारियों में, कमजोरियों में, मुश्किल हालात में फंस जाएं, तो चर्च हमें याद रखना है कि जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर खुदावंद यीशु अपनी बाहें फैलाए खड़ा है कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते, थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आराम और सुकून खुदावंद यीशु के पास है, और वही फरमाता है कि मैं अव्वल और मैं आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा और मैं ही इंतहा हूं। प्रेज द लॉर्ड जी। पढ़े 16:3 भाईजान। और वो मूसा हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर जी उनसे कहने लगे कि तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले। हाँ क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है, हाँ और खुदावंद के बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा क्यों ठहराते हो? अब देखें, जब कभी इब्लीस लोगों के अंदर काम करेगा ना, मुखालफत शुरू हो जाएगी। अब यही काम यहां पर हो रहा है। लोगों ने हारून को और मूसा को कहा कि भाई तुसी बड़े बड़े बने फिरते जे, वही काम मेरा तुसी कर सकते, भी कर सकते हैं। जब कभी इब्लीस जिंदगियों के अंदर काम करेगा, मुखालफत शुरू होगी, मुखालफत परेशानियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस बात को याद रखें, चर्च हम तमाम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। हम क्या जी? हम तमाम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, और बड़ी खूबसूरत बात है कि इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर हो। ये बदन आपस में मुखालफत ना करें। हमने जो कल वहां पर कन्वेंशन रखी है, इसमें बड़ा टॉपिक यही है कि तमाम कलीसिया जो है वो खुदा का बदन है। तमाम कलीसिया एक चर्च है, कहना मसीह में अंगूर का बूटा और तुसी मेरी डालियां। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त बताते हैं, और हम तमाम उसकी डालियां हैं। और ये इसीलिए फिर खुदा फरमाता है तुम मुझसे जुदा होकर
कुछ नहीं कर सकते। जब डाली जुदा हो जाएगी बेल से तो सूख जाएगी, वो क्या होगी? आज के चर्च का भी यही हाल है। अगर कोई शख्स अपने आप को यह समझे कि मैं चर्च से जुदा होकर, मैं खुदा से जुदा होकर कुछ कर लूंगा, नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल बात है। हम कभी भी खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारे बहाने, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे एक्सक्यूजेस हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। हम जब कल चर्च में विजिट में थे, तो मैं इस बात को सिखा रहा था कि भाई प्लीज इस बात को समझा करें, हमारे बहाने, हमारे एक्सक्यूज ये बिल्कुल नाकाम और फजूल हैं। खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि हम उसकी तमजीद करें, हम उसकी बुजुर्गी करें, हम उसकी स्ताइश करें। गो आउटसाइड, हम उसकी स्ताइश करें। ये हमारे लिए जरूरी बात है कि हम उसकी स्ताइश करें, हम उसकी बंदगी करें। ये खुदा का अवलीन मकसद है। प्रेज द लॉर्ड। जी निकाले अय्यूब, उसका पहला बाप, उसकी छठी से 9वीं आयत। मुकद्दस अय्यूब है और उसका पहला बाप है, उसकी 6 से 9वीं आयत। अय्यूब है, उसका पहला बाप है, उसकी 6 आयत से लेकर उसकी 9वीं आयत। अय्यूब जी पढ़े प्लीज। और एक दिन खुदा के बेटे आए, खुदावंद के हुजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया। अब देखें, इब्लीस का काम हमेशा, इब्लीस का काम में खराब करना। खुदा के लोग इकट्ठे हुए, खुदा के बेटे आए तो इब्लीस भी आ गया। इब्लीस हमेशा आता है कि वो इसलिए कि वो फाड़ खाए, खराब करे। एचआरजी इकट्ठे क्यों बैठे ने? इब्लीस हमेशा ये चाहेगा कि मैं इनके दरमियान में कोई ऐसा काम करूं कि ये फट जाए आपस में, इनकी लड़ाइयां झगड़े आपस में हो जाएं। इब्लीस हमेशा चाहता है कि चर्च खराब हो जाए, चर्च तबाह और बर्बाद हो जाए। जी। और खुदा ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? शैतान ने खुदा को जवाब दिया, शैतान का काम है हमेशा फिरते रहना, सुमा लेंदे रहना बस। कभी इधर उठे थे उधर, उधर उठे थे इधर। चर्च का काम, इसका काम ही है इब्लीस का। 24 आवर्स, 24 घंटे इसका काम ये है कि वो खराबियां पैदा करे। और लिखा है कि ये शेर बाबा की तरह धारता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जी। शैतान ने खुदा को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता। जी। और उसके सैर करता हुआ आया। खुदा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर। यानी इस बात को आज शाम हम सीखें कि खुदा ने चर्च के चौगिर्द अपनी एक बाड़ लगाई हुई है। अब आगे जाकर अगर हम सीखें तो यहाँ पर लिखा है कि इब्लीस कह रहा है, भाई जो तूने बाड़ लगाई ना उसके चौगिर्द, उसको जरा हटा के देख, फिर मैं की हाल करना। यानी खुद ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कदरे मुत्ते के साया में। इस बात को चर्च आप याद रख लें, इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इब्लीस जितनी मर्जी चालाकियां करे, जितनी मर्जी वो हथकंडे इस्तेमाल करे, इब्लीस हमेशा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि खुदा ने चर्च के चौगिर्द, खुदा ने अपने लोगों के चौगिर्द एक बार को लगाया हुआ है। खुदा ने हमारे चौगिर्द अपने पाक फरिश्तगान को रखा हुआ है ताकि वो मेरी और आपकी हिफाजत करे, वो चर्च की हिफाजत करे। चर्च को इस बेदीनी के दौर में और मजबूत होने की जरूरत है। और पौलुस फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान और सब्र जो है वो खुदावंद यीशु के आने तक और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। इस बेदीनी के दौर में जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मुफक्करीन हैं जो झूठी तालीमें जो है फैला रहे हैं। अभी मैं पिछले सेशंस में देख रहा था, एक चर्च, अभी भाई ने भी बात की थी, और जाकिर नाइक इस मुल्क में आए हुए थे भी पिछले दौर के अंदर, पिछले वीक के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने अपने ईमान का इनकार कर दिया क्योंकि वो यीशु की जात से वाकिफ नहीं थे। कुछ रुपए पैसों के लिए, कुछ सिक्कों के लिए उन्होंने खुदावंद यीशु का इनकार कर दिया। उसी तरह से जिस तरह से यहूदा अस्करियोती ने किया। आप जानते हैं ना कि उसने 30 सिक्के लिए और खुदावंद यीशु को बेच दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको इस बात का एहसास हुआ, और फिर उसने फांसी ली, उसे उल्टी फांसी ली और फिर अपने आप को खत्म कर लिया। चर्च हमें उस ताज के बारे में जिसका वादा खुदावंद यीशु ने किया है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। हमें उस ताज को पकड़ना है, हमारी रसाई उस ताज तक हो जाए। और कलाम फरमाता है, फिर जो मुझ पर ईमान लाता है, चर्च का जो दूसरी मौत है, चर्च पर उसका कोई असर नहीं है। हमें दूसरी मौत से कोई नुकसान नहीं होगा।
क्योंकि लिखा है कि जो घिनौने काम करने वाले हैं, तमाम जादूगर, तमाम झूठे, तमाम हसद करने वाले, तमाम लड़ाई झगड़े करने वाले, उनका हिस्सा आग और गंधक की झील है, और ये दूसरी मौत है। और चर्च के लिए, जो चर्च हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम जो दुल्हन हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कहता है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास में शामिल हो जाओ जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। निकालें जी, पहला पत्रस है, उसका पहला बाप है, उसकी 6 और 7 आयत। पहला पत्रस उसका पहला ही बाब है, 1 पीटर है, और उसका पहला बाप, उसकी 6 और 7 आयत मुबारक। मैं चाहता हूं इस वर्ष को मिलकर पढ़ लेंगे, ये बड़ी बाबरकत वर्ष है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचा अब चंद रोज के बाद जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, इसलिए कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल इज्जत का बायस है। उससे तुमको बेदेखे मोहब्बत रखते, और अगरचा इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर है और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी लोगों की निजात हासिल करते हो। अब देखें, यहां पर लिखा है कि उस ईमान को और उस आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत कीमती यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस है, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो। अब देखें, हम जितने यहां पर मौजूद हैं, हम देखकर ईमान लाएं, हम सुन पर ईमान लाएं, लेकिन ये हमारा ईमान उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तब जलाल और इज्जत और बुजुर्गी और सताइश के लायक होगा, तब ये बाबरकत ठहरेगा। हम जितने उस पर ईमान लाए हैं, हम जितने उस पर ईमान रखते हैं, कि कलाम फरमाता है जिसने उसे कबूल किया उसने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम यीशु मसीह में हम मिरास हैं, उस मिरास में उस आसमान की बात में मेरा और आपका बड़ा हिस्सा है। हम यीशु मसीह में हम मिरास हैं, हम यीशु मसीह की मिरास में कि जो कुछ उसका है वो सब कुछ चर्च का है। ये कलाम खुद फरमा रहा है कि जिस दौर में जो प्रॉपर्टीज थी, जो मिरास थी, वो बांटी गई, तो उस मिरास में लावियों के लिए, चर्च के लिए कुछ नहीं था, लेकिन खुदा फरमाता है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ वो तेरा है। चर्च वो सब कुछ, हमें पहले आसमान की बादशाही और रास्तबाज की तलाश करनी है। कलाम फरमाता है वो तमाम चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी, इसका वादा खुदावंद यीशु मसीह खुद करते हैं। हमें इस बात पर जोर देना है कि हमें आसमान की बादशाही तक हमारी रसाई हो। चर्च को तमाम मुसीबतों से, परेशानी से गुजरना होगा। आज के दौर में रसवाई, मुसीबतें, परेशानियां, अदावतें, ये तमाम बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि इसका वादा किया गया है कि ये हम पर फजल हुआ है, और फजल का मतलब हमें गिफ्ट मिल गया है कि हमें अज़ाब सानी का चर्च को सामना करना है। आप देख लें, तमाम जहां जहां पर मसीही आबाद है, तमाम खितों के अंदर वो तमाम मसीही जो है, वो चर्च जो है, वो इस अज़ाब सानी का सामना करें। वो चाहे अमेरिका के अंदर हो, वो चाहे जर्मनी के अंदर हो, वो चाहे कहीं भी हो, मसीह आज तमाम खितों के अंदर जो है वो अज़ाब सानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस फरमाते हैं कि हम पर फजल हुआ है, ये हम पर फजल है कि हमें चर्च को खुदावंद यीशु मसीह के लिए अज़ाब सानी का, जुल्म का सामना करना है। लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिनका ताज पाएगा, जो कभी मुरझाने का नहीं है। अब अच्छा, इस ताज की बात, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि ये ताज बड़ा सोने का ताज होगा। ये ताज, इस बात को याद रख लें, जब कभी इस्राएली इस ताज को पहनते, बादशाह इसको पहनते, और ये ताज यहां पर इसके गुलाब के फूल लगे होते, इस ताज के चौगिर्द गुलाब के फूल और पत्तियां लगी होती। बड़ी अजीब बात है, हम बाइबल में सीखें इस बात को। वो ताज मुरझाने का नहीं है। सोना कभी मुरझाता है या कोई धात कभी मुरझाती है? हम इसको बाइबल से देखेंगे। अब ये लोग अमूमन जो है वो मंदिरों के अंदर, उस दौर के अंदर मंदिरों के अंदर इस ताज को पहन कर जाते थे, और ये ताज की तस्वीर इसलिए दी गई कि मैं तुम्हें वो ताज दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं, क्योंकि ये ताज बड़ा खुशबू और दिखने में बड़ा अच्छा लगता था। इस पर फूल होते थे,
इस पर जो है पत्तियां उगती थी, और चर्च के लिए खुदा ये वादा कहा कि मैं तुझे वो ताज दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालें पहला पत्रस है, उसका 5वां बाब है और उसकी चौथी आयत मुबारक। चैप्टर 5 है, पहला पत्रस है और उसका 5वां बाब है। और जब सरदार गलाबान ज़ाहिर होगा, मिलकर पढ़ेंगे, और जब सरदार गलाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है। तुम्हें कैसा सेहरा मिलेगा? जो मुरझाने का नहीं है। यानी मैं बता रहा हूं कि वो ताज चर्च के लिए वो ताज है जो कभी, यानी इससे मतलब ये है जिंदगी और मौत। इससे मतलब क्या जी? देखिए, ये जो जिस्म है ये फना का जामा पहनेगा, और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि ये जिस्म जो है ये कभी इस जिस्म के साथ और हम गोश्त के साथ कभी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। और लेकिन वहां पर हमें वो ताज मिलने वाला है जो कभी खत्म ना होने वाला है। हम ये कह सकते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं है, यानी हमेशा की जिंदगी, इंटरनल लाइफ। कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि चर्च पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा। हम वहां पर एक जलाली बदन हमारे पास होगा और हम उसके साथ बैठकर, खुदावंद यीशु के साथ बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का और बल्कि फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। लेकिन चर्च हमें करना क्या है? हमें बर्दाश्त करना है। इस दौर में रहते हुए हम पर मुसीबतें, परेशानियां, एजारसानी आएगी। लोग हमारे लिए बड़े बुरे अल्फाज भी जो है इस्तेमाल करेंगे। कौन बड़ी भगतनी बनी है, कौन बड़ा है भगत बनया है, इसको बाहर देखें। बहुत सारे लोग बुरी बातें भी बनाएंगे, लेकिन चर्च हमें बर्दाश्त करना है क्योंकि हमारे लिए वो ताज है, वो सेहरा है जो कभी मुरझाने का नहीं है। चर्च के लिए बड़ी कामिल उम्मीद है, बड़ी कामिल बाबरकत उम्मीद है जो बरकत से भरी है कि हमें आखिर में कलाम फरमाता है कि मैं तुझे वो ताज दूंगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। मैं जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आज लोग निजात के लिए अपना बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करते हैं, अपना वक्त, अपने वसाइल सब कुछ इस्तेमाल करते हैं हमें निजात मिल जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, मुफ्त मुफ्त। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा, कोई पैसा नहीं, कोई हदिया नहीं, कोई बकरा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बार अपनी कुर्बानी के वसीले चर्च को खरीदा है कि वो उसकी दुल्हन बने। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।